स्टार्ट करिए। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में सेलर और बायर दोनों मिलकर प्राइस कंसीडरेशन एक्शन करते हैं। गुड्स के दो टाइप होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल फॉर एग्जांपल स्टॉक, ग्रास, ओल्ड करेंसी। इमूवेबल फॉर एग्जांपल एक्शनेबल क्लेम, जिसे अनसिक्योर्ड डिबेट्स भी कहते हैं। मैम लाइट कट गया यहाँ भी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। मैम वीडियो ऑफ कर सकते हैं? नहीं, आप दिख रहे हैं दिया, लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब बैंक हमको हमारा प्रॉपर्टी अपने पास रख कर लोन देता है, उसको अनसिक्योर्ड डिब्स कहते हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई इन मूवेबल प्रॉपर्टी। एलिमेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट: फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड पार्टी एंड थर्ड वन प्राइस कंसिडरेशन। Definition of contract: contract of sales. Good is contract where seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. अंकित ऊपर करना। कर दिया। Definition of sales and agreement to sell. First of all, ownership passes to the buyer. Ownership remains with the seller. It is an executed contract. It is an executory. Risk of loss falls on the buyer. Risk of loss fall on the seller. Seller cannot resell the goods. Seller can sell goods to third party. It can be in case of existing and specific goods. It can be in case of future, the uncertain goods. Difference between sales or bailment. First one, delivery of ownership of goods from seller to buyer. First, deliver of goods from bailor to bailee. Second, returns of good is not possible, and return of good after a specific time. Difference between sale and hire purchase. First, sale is governed by Seller Goods Act 1930. Hire purchase is governed by Hire Purchase Act 1972. And second, in case of sale, the ownership of goods transferred to buyer immediately. Second, ownership transfer in the case of installment. Third, pay price of goods, pay price installment. Types of goods. There are three types of goods: existing, future goods, or contingent goods. Existing goods already available on seller. Contingent goods: if I have good, I give. If you otherwise, agreement remain cancelled. Existing are two types: certain goods and uncertain goods. Existing goods. Existing goods are goods which owned by seller at time of product or contract. Second one, uncertain goods. Those goods which are identified after the formation of contract of sale. Third one, uncertain goods which are not specifying, identified but are indicated by description. Fourth one, future goods. Future goods are goods which are to be manufactured or produced after making of the bill. Fifth one, contingent goods. Goods which are not existing at the time of contract of sale are called contingent goods. Condition vs warranty. Applied conditions essential, warranty collateral to the contract. Two types: express or oral or written, and implied law. Implied condition: as
As to title, in every contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is an implied condition on the part of seller. In case of a sale, he has a right to sell the goods. And in case of an agreement to sell, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. If the seller titles turn out the defective, the buyer may reject the goods. टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप से जब फ्यूचर में हम उस कंडीशन का परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस तब भी सेलर के पास प्रॉपर्टी का पास करने का राइट होना चाहिए। अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव होती है तो बायर गुड्स रिटर्न करने को रिकवर कर सकता है। Implied condition under sale by description. In a contract of sale by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. Description may be in terms of quality, size, or dimension of characteristics of the goods. किसी भी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में दो चीजें नहीं दिखाई जाती, जो एक्यूरेसी में नहीं होती है, हमेशा कंडीशनल ही होता है। Implied condition by sample. In a contract of sample, there may be flowing implied condition that the actual products would correspond with the sample with respect to the quality, size, dimension, etc. There gets a opportunity to compare the goods with the sample. There shall not be any latent hidden defect in goods that is not discernible by exercise of ordinary care. आपका गुड्स जैसे सैंपल होगी वैसे होनी चाहिए। अगर हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तब ये होता है। Implied condition, buyer and seller description and sample. In a sale by sample as well as description, the goods supplied must be in accordance with both the sample as well as the description. मतलब जो आप बल्क परचेज कर रहे हो वो आपको सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कंडीशन एज टू क्वालिटी और ऊपर करना। As such, there is no implied condition as quality or fitness of goods. The buyer beware. There is an implied condition that the goods shall be responsible for such purpose if following condition satisfied. एक पार्टिकुलर पर्पस के पास गुड बाय कर रहे हो वहां से एग्जामिन लिया जाएगा गुड्स की क्वालिटी और फिटनेस ओके रिपोर्ट है कि नहीं। गुड्स मस्ट बी मर्चेबिलिटी क्वालिटी। थोड़ा सा ऊपर करना कर दिया। ये गुड्स मस्ट बी मर्चेबिलिटी क्वालिटी। merchantable quality means नीचे थोड़ा नीचे करो। must free from any hidden effect. This condition is applicable where the defects are latent and could not be discovered by an ordinary examination of the goods. Seller should be a dealer in a goods either as a manufacturer. Quality must be free from an hidden effect. This condition is applicable where the defects are latent and could not be visible by an ordinary examination of the goods. जब गुड्स डिलीवरी हो
हो रहा है या लायक हो, ऐसा नहीं कि आपका पर्पस फुलफिल ना हो। कंडीशन एज होल सेमनेस। ऊपर करना। Condition as whole sameness. In case of sale of eatable products and food stuff, there is another implied condition, that is goods shall be wholesome. By wholesome, it means that good must be for human consumption. Thus, the provided food stuff must not only correspond to their description, but must also be wholesome. हम ऐसा एजम्पशन लेते हैं कोर्स में ये चीज एटलीस्ट होनी ही चाहिए। इम्प्लाइड वारंटी, इसमें कोलेटरल होगा, मैं पर्पस वारंटी के ब्रीच होने पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स सकते हैं। स्क्रीन ऊपर करनी, स्क्रीन ऊपर ही है। इम्प्लाइड वारंटी। Warranty of quiet possession of goods, section 14. The buyer shall have enjoy quiet possession of the goods, which means a buyer entitled to the quiet possession of the goods purchased as an implied warranty, which means the buyer, after receiving the title of ownership from the true owner, should not be disturbed either by the seller or any other person claiming superior of the goods. नो वन कैन डिस्टर्ब मी, मतलब जो प्रॉपर्टी मेरे पास है दूसरा आदमी हक नहीं जमा सकता। सेकेंड वन, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इम्ब्रेंसेस, किसी तरह का क्लेम उस गुड्स पर नहीं है जो सेलर आपको दे रहा है, वो गुड्स फ्री है, सबसे फ्री फ्रॉम एनीथिंग, any charge imbalance pending in favor of the third party which was not declared to the buyer while entering into a contract shall be considered as a breach to warranty, and the buyer is entitled compensation and claim damages from the seller for the same. किसी तरह का क्लेम उस गुड पर नहीं है जो सेलर आपको दे रहा है, वो गुड्स फ्री है, सबसे फ्री फ्रॉम एनीथिंग। Warranty of disclosing the dangerous nature of goods. There is an implied warranty on the part of seller who is selling goods of dangerous nature to warn the buyer about the nature of goods and probable danger. If that does not inform and any injury caused to buyer or any other person, then seller shall be held liable for breach of warranty. अगर गुड्स में खतरा हो तो बायर को बताना चाहिए, बायर को गुड्स से होने वाली नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए। सो थैंक यू मैम। जो आपका स्लाइड था मूवेबल एंड इमूवेबल, इसमें मूवेबल एंड इमूवेबल, वो स्लाइड लाइए अंकित। यस मैम। फर्स्ट स्लाइड निकालिए। दुर्गेश, अच्छी पढ़ाई हो रही है, सही फोकस थे आप पूरे प्रेजेंटेशन में। आप ही से क्वेश्चन है दुर्गेश, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या बताया गया था जो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर आएगा? मैम ग्रास था, स्टॉक था, इसके बाद इस मूवेबल में ग्रास था, स्टॉक था, इसके बाद प्राइस था मैम, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होता है ना। एक्सेप्शन में क्या बताया गया था? एक्सेप्शन
मनी मूवेबल है या इमूवेबल है? नहीं मैम, मूवेबल है मैम। तब तो आना चाहिए, मनी भी आएगा ना तो। वेटिंग फॉर योर आंसर, यस और नो? मनी, आई थिंक सर मैम मनी इमूवेबल था, जिसमें आपने बताया था अनसिक्योर्ड डेब्ट के बारे में कि जब हम कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के हमको बैंक लोन देता है तो उसको मैम इमूवेबल गुड्स में कहते हैं। वो सर मैम वो मनी इमूवेबल में आएगा। मूवेबल में मैम स्टॉक आएगा, ओल्ड करेंसी आ जाएगा और ग्रास आ जाएगा मैम। यस मैम। डिड आई मेंशन कि वो इमूवेबल हो जाएगा? मैंने कहा मनी मूवेबल है, बट ये एक्सेप्शन है, वो इसमें आएगा नहीं। ओल्ड कॉइन्स को हम लोग गुड्स के अंदर रखेंगे, मनी को हम लोग नहीं रखेंगे। एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था मनी, और एक और था, क्या था? एक एक्सेप्शन था मनी, और हम एक्सेप्शंस में तो सिर्फ मनी ही बताया था, दूसरा एग्जांपल कहाँ दिए थे? क्लेम। एक्शनेबल क्लेम तो मैम आप इमूवेबल में बताए थे ना, जिसमें अनसिक्योर्ड डेब्ट था जो बैंक हम। था कि नहीं? एक्सेप्शन था कि नहीं? एक्सेप्शन में मनी और इमूवेबल क्लेम बताया गया था कि नहीं बताया गया? तो उसको हम लोग गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे। अंकित कंफर्म करिए, एक्शनेबल क्लेम को और मनी को हम लोग एक्सेप्शन बोले थे, गुड्स में कंसीडर नहीं करेंगे, बोला गया था। यस मैम, अनसिक्योर्ड डेब्ट्स। एक्शनेबल क्लेम का मतलब मैंने बताया था जो भी अनसिक्योर्ड डेब्ट जो होता है वो मैम नोट्स में है ही नहीं। मैम वो तो है, आपने बताई थी मैम। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लिखाया था ना मैम आपने एक्शनेबल क्लेम। यस मैम, इमूवेबल एक्सेप्शन लिखा में है। पूछ रही हूँ, मैम आपने एक्सेप्शन मैंने बाइफरकेट कहा था कि करवाया नहीं? था। आप लोग लिखे भी नहीं है। मैम सारा लिखे नोट्स हैं। में अवेलेबल है मैम, ये इंक्लूड नहीं और लिखा एक्सक्लूड हुआ है। में। हाँ, मैम मूवेबल और इमूवेबल में इमूवेबल में है मनी मैम। एक्सेप्शन मैंने कहा था कि नहीं, वो मैं पूछ रही हूँ। नो मैम नहीं कहा था। मैम ये नहीं बोले थे आप। अवेलेबल है अंकित, गुड्स में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं बताया गया था? गुड्स में ये कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं बताया गया अब था? आपने ये एक चीज बताया था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो होता है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता है, जिसमें आपने बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में का एग्जांपल था मनी और एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डेब्ट्स को, यानी कि जब हम बैंक हमको गिरवी रख के अगर लोन देता है हाँ, उसी तो केस को बताया हम गया कहते था हैं ना जहाँ ये सारा चीज। हाँ, तो बताया गया है ना ये सारा चीज। तो फिर आपने ये चीज नहीं बताया था कि एक्सेप्शंस मेरे साथ सर हम ही लोग नहीं लिखे होंगे, हो सकते हैं। जो भी इमूवेबल में अगर आप कैटेगराइज कर रहे हैं तो इमूवेबल तो हम इसमें करते नहीं है सर, सब कुछ में सिर्फ मूवेबल करते हैं। और मनी मूवेबल है, ये मैंने बताया था, वो मूवेबल है, लेकिन हम मनी को इसमें नहीं रखते हैं गुड्स में, हम लोग एंटीक मनी को रखते हैं। ठीक है, गुड्स में हम लोग एंटीक मनी करेंगे, तो इसीलिए रिया यहाँ पे जो सिर्फ दो आप दे रहे हैं, दो करके Yes, ये ma'am. छुट्टी नहीं छुड़ा सकते। यहाँ पे आपको सारा लिखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉक, ग्रास, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना हो। ठीक है, और रिमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप कंसीडर किए ही नहीं। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था मनी और एक्शनेबल क्लेम, वो सब यहाँ नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से बन के आता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इनकम्बरेंस का प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अंडरस्टूड? कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप? किस चीज का मैम? इनकम्बरेंस कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इनकम्बरेंस। तो वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं था। ठीक है, उस पर चेक कर लीजिए जब आप प्रेजेंट कर रहे थे। और क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन